Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap and we are here on iXMB to embrace the iXMB learning experience. In today's session, we are going to actually start with the previous year paper for especially those aspirants who are targeting CIL recruitment 2025. When we talk about the aptitude test of our English section, I have already shared a video regarding your important topics in terms of first paper of your English. आज की सेशन में you'll have certain idea that what are the levels of questions going to be, or let's say the topics which I have already suggested. What are the questions which we can expect? So let's quickly start the session. Let's try to solve it together. You people can also share your answers in the comment section. So the very first question is asking that what is the appropriate synonym of the given word reticent? Now we have words as vivacious, reserved, animated, and talkative. Now reticent is that kind of a person who is like use very less words to speak, or someone who is very unwilling to speak. As soon as you get to know this meaning, you know that no, we are not talking about the person who is very talkative. We are looking for a synonym of it. It has nothing to do with animated or vivacious, so we are going with option number B. Let's try question number 2 that says again appropriate synonym of the word enigmatic. Enigmatic, generally in our session I provide some mnemonics to my students. So where I've always suggested them to remember enigmatic with always mysterious things, something which always involves something hidden in it. So yes, we have direct answer as option number A. Okay, question number 3 is asking about your one word substitution. This is again one of the very important and sort of the topics of our Coal India recruitment. So this says a written work dealing formally and systematically with a single specialized subject. Guys, single is your keyword. As you all know that mono is the root word for a single thing, right? So definitely we all have monolith, we have monogram, we have monograph, and we have monologue. सो मोनोलिथ, आई होप एवरीबडी कैन रिलेट लिथ विथ स्टोन्स, तो ये तो हमारा आंसर होना नहीं है. ग्राफ की अगर बात करें, ग्राफ इज ऑलवेज गोइंग टू डील विद द राइट थिंग. ये जो मैं बता रही हूँ इसको रूट वर्ड्स बोलते हैं. दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट फेमिलियर विद द रूट वर्ड्स, यू कैन रेफर टू लेट्स से बुक कॉल्ड वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लेविस. नॉर्मन लेविस की अगर आप ये बुक देखेंगे तो ये रूट वर्ड्स करने के लिए बहुत अच्छी किताब है. फिर आते हैं मोनोलॉग पर. जैसे आप डायलॉग जानते हो कि डायलॉग में दो लोगों के बीच में बात होती है, तो मोनोलॉग जाहिर सी बात है किसी एक ही इंसान के लिए बात हो रही होगी. तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो हमने क्या लिखा है, रिटन वर्क डीलिंग फॉर्मली एंड सिस्टमेटिकली. तो रिटन वर्क है, सो यू नो समथिंग हैज़ टू डू विद द राइट पार्ट. Yes, so we are going with option number C here. Now, if you people are thinking कि monogram क्या होता है, monogram is nothing but, for example, my name is Anjali, so the first letter of Anjali is A. तो अगर इस तरह की चीज़ें जो है ना कहीं सिंबल के रूप में मैंने कहीं लिख के रखा है तो वो मोनोग्राम कहला जाता है. तो आप इसे फॉर्मली ये समझ सकते हो कि मोनोग्राम इज जस्ट अ सिंबल विच इज़ यूजुअली फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ a person's name and it gets joined together, or let's say it can be sewn together or printed on a cloth or other professions. आपने देखा होगा कई बार ये. फिर आता है अगला क्वेश्चन. यू ऑल नो ग्रामर के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दी डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दिस वन. ऑल ऑफ अस वेंट सीइंग द एग्जिबिशन विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यंग साइंटिस्ट्स. आप सब जानते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम वर्ब ऑफ परसेप्शन या वर्ब ऑफ इमोशन बोलते हैं. वी नेवर यूज़ ING विद देम, राइट? तो याद रखिए सी उसमें से एक वर्ब है. ऐसे में और वर्ब की लिस्ट दे देती हूँ आपको. प्लीज़ रेफर टू दिस. यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दैट. सो you cannot use ING with see, you cannot use ING with believe, you can not use ING with own, hate, love. मतलब इनके साथ रिकमेंडेड नहीं होता है कि हम ING फॉर्म लगाएं. सो आई होप एवरी वन इज़ गोइंग विद ऑप्शन नंबर C हियर. तो सही सेंटेंस क्या होगा? ऑल ऑफ अस वेंट टू सी. अब मैं अकेले सी नहीं लगा सकती हूँ, हमें टू भी चाहिए. तो ऑल ऑफ अस वेंट टू सी द एग्जीबिशन विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यंग साइंटिस्ट. नाउ द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
Now we have another question is related to idiom. Snug as a bug in a rug. सो स्नग से आप हमेशा याद रखिएगा स्नगल करना. फॉर एग्जाम्पल जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो जनरली वी स्नगल इन दी ब्लैंकेट्स, राइट. तो बस वही है, व्हेन यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ कोजी पोजीशन वी यूज दिस, एंड दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग ऑप्शन नंबर सी. Okay, another question based on grammar, basically spot the error kind of thing. Here we have to find out the correct sentence. चलो सारे पढ़ने पड़ेंगे हमें यहाँ पे. He was quite happy for further studies to go abroad. Okay, he was quite happy to go abroad for further studies. To go abroad, he was quite happy for further studies. For further studies to go abroad, he was quite happy. So guys, the sentence is written in the best possible manner in only option number 2. We have a proper subject, we have a verb, we have a purpose defined here, that why he wants to, or why he is basically happy, because he is going abroad for further studies. Let's go for the next question. Next question कह रहा है select the most appropriate antonym of the given word. देखो synonym के 2 question पूछ लिया है, तो कायदे से अब शायद ये 1 या 2 question हम expect करते हैं antonym के. When exacerbate something, when something is going to worsen something, कोई चीज़ ना पहले से ख़राब है उसे और भी ख़राब बनाना, वो हो जाता है एक्सासरबेट. इसका उल्टा क्या होगा? अच्छा करना. मतलब अगर आप टोन ऑफ वर्ड्स देखो तो दिस इज़ अ निगेटिव टोन वर्ड. सो बेसिकली आंसर हमारा कोई पॉजिटिव टोन वर्ड होगा. येस, यू पीपल आर थिंकिंग राइट, एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, पैसिफाई. पैसिफाई का मतलब हो जाता है टू ब्रिंग पीस, शांति लेके आना, है ना, चीज़ों को ठीक करना. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, बट एक्चुअली यूज़ आपको यहाँ पे ग्रामर ही करना है. इट इज़ नॉट डैश एनीबडी टू टेल हिम वॉट ही शुड डू विथ हिज मनी. मतलब ये कोई और क्यों बताएगा उसे, है ना. तो इट इज़ नॉट डैश एनीबडी, नॉट फॉर एनीबडी, इट इज़ नॉट विथ एनीबडी, it is not at anybody, it is not to anybody. Guys, the correct preposition for this sentence is, yes, you people are thinking absolutely right, it is not for anybody. ये दूसरे का पर्पस नहीं है उसे बताना कि उसे अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए. ठीक है, अब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं. इसे आप सेंटेंस का रीअरेंजमेंट कह सकते हो, पैराजिम्पल कह सकते हो. ऐसे हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमारे एग्जाम में. लेट्स ट्राई टू सी कैसा क्वेश्चन है. द मिनिमम टेम्परेचर फॉर द नेक्स्ट 5 days अकॉर्डिंग टू IMD's फोरकास्ट इज़ लाइकली टू होवर अराउंड 10 to 12 डिग्री सेल्सियस. स्टूडेंट्स, अगर इस चीज़ का मैं आपको एक हिंट दूँ जो आपको हमेशा हेल्प करेगा, वो है पहला कि आप हमेशा ये सोचो कि आपके सेंटेंस का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, मतलब किस चीज़ से मैं अपनी सेंटेंस शुरू करूँ. दूसरा है पॉइंट, वो है लिंक. मैं किसी भी 2 पार्ट्स को जोड़ दूँ. जैसे यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, अकॉर्डिंग टू IMD's फोरकास्ट, दिस कैन बी माई एंट्री सेंटेंस, है ना, इंट्रो सेंटेंस. एंड अकॉर्डिंग टू IMD's फोरकास्ट द मिनिमम टेम्परेचर कब होगा, द मिनिमम टेम्परेचर फॉर द नेक्स्ट 5 days इज लाइकली टू होवर अराउंड 10 to 12 डिग्री सेल्सियस. सो सी से स्टार्ट किया और BD हमारा पेयर आ रहा है, हो सकता है DB भी हो सकता है. चलिए, अब हमको यही पॉसिबिलिटी खंगालनी है हमारे ऑप्शंस में. तो हम देख रहे हैं हमारे पास एक ऑप्शन है CBDA और एक ऑप्शन है CADB. चलिए पढ़कर देखिए, C के बाद A सही लग रहा है या B सही लग रहा है. अकॉर्डिंग टू IMD's फोरकास्ट द मिनिमम टेम्परेचर, ओके, अकॉर्डिंग टू IMD's फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 5 days. तो नहीं, अकॉर्डिंगली किसी के क्या है, अब आप एक स्टेटमेंट देना चाहोगे इसके आगे. सो वी कैन नॉट स्टार्ट माई सेंटेंस विथ, आई मीन वी कैन नॉट गो अहेड आफ्टर CB के साथ हम नहीं जा सकते. सो अल्टीमेटली वी हैव टू गो विथ CA वाला पेयर, एंड दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग ऑप्शन नंबर D. वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, बट आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है. ओके, सो यू माइट एक्सपेक्ट क्वेश्चन लाइक दिस. चलो यहाँ पे वही करना है, इट्स नथिंग a new sort of strategy we are going to employ. फर्स्ट एंट्री सेंटेंस निकालनी है हमको, इंट्रोडक्शन सेंटेंस निकालना है, वो निकाल लेंगे अगर हम, तो फिर कोई पेयर बनाना शुरू करेंगे. चलिए, हाउएवर इन यूरोप एंड वेस्टर्न वर्ल्ड देयर इज डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ सम डिमेंशिया.
डेफिनेटली हाउएवर के साथ हम अपनी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं कर सकते. ओके. Researchers expect the number of people with dementia to increase in every country globally, regardless of the region. This can be our introductory sentence. Healthy diets, less alcohol, and stopping smoking are key parts to manage the risk for dementia. Again, this looks like a continuity sentence. ये शुरुआत नहीं करेगा. The projections in North Africa and the Middle East are quite large, and it is due to large increases in both population growth and population aging. अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिमेंशिया की कोई बात ही नहीं हुई है डी में, तो हम अपने सेंटेंस को डी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही सी से स्टार्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं. अच्छा, ये सारे सेंटेंसेस पढ़कर आर यू एबल टू फाइंड आउट एनी टू सेंटेंसेस जिनको बिल्कुल साथ में आना चाहिए? चलिए हम सिर्फ ये पता अगर कर लें कि बी के बाद वाला सेंटेंस ए है या डी है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा हमारा, राइट. तो बी में लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ पीपल है डिमेंशिया के साथ वो इंक्रीज़ कर रहा है ग्लोबली रिगार्डलेस ऑफ द रीजन. अब ध्यान से देखो, अगली लाइन में रीजन का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और वो कहाँ दिख रहा है आपको? येस, यू पीपल आर राइट, इट शुड बी डी. बस our question is solved and we are arriving at the right answer. So BDAC आपका फाइनल सीक्वेंस बनता है इस क्वेश्चन का. तो गाइज ये था हमारा पैराजंबल. अगला जो सवाल है, इस बार फिर से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है एरर का. क्वेश्चन कह रहा है द ऑडियंस वर बिगिनिंग टू मूव आउट ऑफ द हॉल बिफोर द वोट ऑफ थैंक्स एंडेड. देखो, ऑडियंस जो है ना वो एक कलेक्टिव नाउन होता है बच्चे. कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन कैन बी प्लूरल. तो सारा खेल टिका हुआ है कॉन्टेक्स्ट पे. व्हाट आर वी ट्राइंग टू इंटरप्रेट, है ना. तो हम जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो ये कि पूरी की पूरी ऑडियंस जो है वो हॉल से बाहर निकलने लगी, राइट. सो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. सो इंस्टेड ऑफ वर वी आर गोइंग टू पुट वॉज, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर being used as a singular unit. हम उसे एक यूनिट की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो वर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर होगा. So that's why we are marking option number D as our right answer. So that was our first part of this PYP. We will be going ahead in the second part. अगले ही सेशन में हम जल्दी मिलते हैं. अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इन द चैट सेक्शन. आज के लिए इतना ही. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.